Good morning, students. Students, today I am here to discuss two new phylums of kingdom Animalia, and I will discuss some common characteristic features of the animals of these two phylums. Okay, initially I am going to discuss about the phylum Ctenophora. So, but initially I want to tell you that exclusively all the animals which are kept into this category are marine animals. Means these will occur only in the salty water. Okay, the second point, the animals of this phylum are radially symmetrical, means we can cut their body into two equal halves by more than two planes. And these are diploblastic. Diploblastic means they have only two germ layers during their embryonic development. The external layer is called ectoderm and the internal layer is called as endoderm. Okay, the animals of this phylum are also called as comb jellies. Okay, because they have some comb like pattern of the rows of the cilias, so that's why these are also called as comb jellies. Okay, if you will observe or you will see their structure, you will find out that they have a spherical body with external rows of cilia, means they have football like body, or we can say that they have spherical body which have some spherical rows, which have some external rows, and these rows are made up of cilia. And the specific feature of this phylum has that they have bioluminescence, means they have capability to emit light, यानी कि ये पानी के अंदर रहते हुए लाइट का एमिशन करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस को जनरेट करते हैं. ठीक है. एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ देयर. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड द फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल. नाउ यू मस्ट हैव सम क्वेरी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी फीमेल अपना ओवम जो है पानी में कहीं रिलीज़ कर रही है और उसके ऊपर स्पर्म आकर के उसे फर्टिलाइज़ कर रहा है एक्सटर्नल मीडियम में यानी वाटर में, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया. अगर फीमेल की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ करता है और फीमेल की बॉडी के अंदर ही कहीं फर्टिलाइजेशन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट इन केस ऑफ टीनोफोरा द फर्टिलाइजेशन इज़ external. And the examples of this phylum are Tinoplana and Pleurodontia. I want to show you some figures of these animals. So these are the figures of these two animals, okay, which are included into the phylum Ctenophora. Now I am coming very quickly to the next phylum Platyhelminthes. And phylum Platyhelminthes mostly contains or bears flat worms, means those worms who have flattened body, means dorsally or ventrally their body is flat. ठीक है. And if I will talk about them, they have bilateral symmetry, means we can cut their body into two equal halves by only a single plane. ठीक है. And with blind sac body plan. Now I think you know very well that what is the meaning of blind sac body plan. Blind sac body plan का मतलब ये होता है कि इनके बॉडी में केवल एक ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों का काम जो करती है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन दिस फाइलम आर एंडोपैरासाइट. नाउ पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं. ठीक है. और एक्सो वो होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं, बट इसमें जो आता है वो एंडोपैरासाइट है. एंड एंडोपैरासाइट्स आर लिविंग इनसाइड द बॉडी. और कुछ बहुत एनिमल जो हैं इस कैटेगरी के लाइक प्लेनेरिया जो क्या है फ्री लिविंग भी होते हैं. नाउ देयर बॉडी इज़ लीफ लाइक और रिबन लाइक. आपने देखा होगा लीफ कैसे फ्लैट होती है ना, डॉर्सली और वेंट्रली. या रिबन देखा होगा आपने, डॉर्सली और वेंट्रली बिल्कुल फ्लैट होता है. तो इनकी बॉडी क्या होती है, रिबन और लीफ लाइक होती है, अनसेगमेंटेड होती है, कोई सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में नहीं होता है. ठीक है. और नाउ वन मोर थिंग इज़ रिटन हियर, दे आर डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैटेंड एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल. इनकी बॉडी डॉर्सली वेंट्रली बिल्कुल फ्लैट होती है पेपर की तरह. ठीक है. एंड इनकी बॉडी के बाहर की मोस्टली एंडोपैरासाइट हैं, तो एंडोपैरासाइट है तो एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा रहते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल में इतने सारे डाइजेस्टिव जूस हैं जो इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो इससे बचाने के लिए इनके बाहर इनकी जो एक्सटर्नल लेयर है उसके बाहर क्यूटिकल की एक लेयर होती है. क्यूटिकल जनरली क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है म्यूकस लाइक, जो कि क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम. इसके अलावा इसके पास एक और अडेप्टेशन है जो इसको पैरासिटिक लाइफ देने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. पैरासिटिक फॉर्म शो सकर्स एंड हुक्स. सकर्स क्या काम करेंगे आप समझ ही रहे हैं. सकर्स जो होंगे एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को सक करने का काम करेंगे. वहीं हुक क्या करेगा, इनको एंकर देने का काम करेगा, किसी भी पोजीशन में इन्हें एक फिक्स पोजीशन में बने रहने में हेल्प करेगा. ठीक है.
इन पैरासिटिक फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज एबसेंट। दिस इज़ वन मोर एडेप्टेशन। देखिए अब इनको पका पकाया खाना मिल रहा है, मीन्स इनको न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बिल्कुल वेल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जब मिल रहे हैं तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। सो दे हैव द पैरासिटिक फॉर्म लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। इफ प्रेजेंट इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग। अगर प्रेजेंट भी है तो इसके पास केवल क्या है, एक सिंगल ओपनिंग है, जहीं जहाँ से इनका फूड अंदर जाएगा और वहीं से इनका वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा। एक्सक्रेटरी सिस्टम, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द व्यू ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टू, कि इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए जो इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इसमें फ्लेम FLAME फ्लेम सेल्स इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जिसकी मदद से ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ फिगर ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम का जो कॉमन नेम होता है इसको हम टेप वॉर्म भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं डॉर्सली वेंट्रली इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। एंड द राइट साइड पे जो फिगर है उसके माउथ का एक जूम करके दिखाया गया है आपको। इसमें सक्कर्स प्रेजेंट हैं जो सक करने में हेल्प करते हैं, और हुक्स प्रेजेंट हैं जो एंकरेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द अनदर एनिमल ऑफ दिस फाइलम, एंड दिस एनिमल इज़ बेसिकली प्लेनेरिया। इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रीजनरेशन कैसे होता है इसमें, ठीक है। नाउ देर आर सम अदर फीचर्स। नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ द नर्व विंग एंड नर्व कॉर्ड। बहुत सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम इनके पास होता है। तो नर्व्स की रिंग्स जैसी बनी होती है जिन्हें नर्व रिंग बोलते हैं, या नर्व कॉर्ड की फॉर्म में आपका नर्वस सिस्टम होता है। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड एनिमल्स आर मोस्टली हर्माप्रोडाइट। हर्माप्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल। जब एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल, तो ऐसे एनिमल को हम हर्माप्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। एंड मैंने पहले कहा कि जैसे प्लेनेरिया, इनके पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर इनकी बॉडी को कट कर दिया जाए तो इनकी बॉडी इक्वल पार्ट्स में, यानी जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है उतने पार्ट्स रीजनरेट हो सकते हैं, एक नए इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं। सिंस दे आर एंडोपैरासाइट, हुक्स और सकर्स इनके पास प्रेजेंट है, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और सेंस ऑर्गन इनके पास ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है, इनको सेंस ऑर्गन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, लोकोमोशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो एबसेंट। एंड एग्जाम्पल्स आर टेपवॉर्म एंड लिवर फ्लूक। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं टेपवॉर्म है और लिवर फ्लूक है, इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। हेयर दिस इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। Tomorrow once again I will meet you with some few new topics. Till then, thank you and bye bye.